Please confirm if the voice is audible. Yes, okay, fine. So today we will be doing a few questions based on Indian logic asked so far, and so primarily like we have discussed कि exam जो है आपका 2019 that is June 2019 में ही syllabus change हुआ है. So at max what we are going to discuss is questions asked in your 2020 attempt and 2019. That's it. You don't have much reference. Having said that, one question or even two questions have come. 1 to 2 questions have come from Indian logic so far. So we will start with 2019 questions and we will also talk a few 2020 questions in today's class. पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा बट लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर. तो ये पहली क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने को बाकी जो पार्ट्स हैं उसके भी लगाने हैं लॉजिकल रीजनिंग के. सो वी माइट हैव वन मोर क्लास ऑन दैट. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्या कहता है? द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिक and acha this meeting is streaming live on YouTube, so you guys can share YouTube link before I begin. If you all can share it on with your respective friends or someone who is giving this exam. Yeah, तो आप लोग YouTube का लिंक मैं एक बार शेयर कर दे रही हूँ, आप भी अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं. ओके, तो yeah, just a minute, I will share the link with you. Meanwhile, you answer first question. Third, perception. Perception, you are saying. Okay. So, or if someone can just put up link, navigation is usually challenge here. Perception, yes. Lौkic and alaukic pratyaksh. This we have talked in detail. Pratyaksha or perception is the correct answer here. The distinction between लौकिक and अलौकिक प्रत्यक्ष is made with reference to pratyaksh pramanas. So this we have talked. Ordinary perception, extraordinary perception, लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष, it means one and the same thing. Yeah. So यहाँ पर एक बार देख लीजिए. When we say ordinary प्रत्यक्ष, it is also known as असाधारण प्रत्यक्ष. Yeah. So हम कहें लौकिक प्रत्यक्ष, साधारण प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष, असाधारण प्रत्यक्ष, it means one and the same thing. Okay. So ये चीज होप इसके क्वेश्चंस अब गलत नहीं होंगे आप लोगों के. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following pramanas used by classical Indian school to prove the existence of God? Arthapati. Arthapati. D. Inference, Anumana. So getting varied answers here. क्या कह रहे हैं? Changing answers. Okay. To prove the existence of God, it is inference only. To prove the existence of God, Arthapati, we do not really assume here. See, what was Anuman? Anuman क्या था? अनुमान पश्चात ज्ञान और बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, है ना. सो हमने अब जनरेशन से सुन के रखा है कि दिस इज द गॉड. ये हम जिस फैमिली में हमारा बर्थ होता है वहां से ही हम ये ज्ञान पा लेते हैं कि ओके दिस इज व्हाट द गॉड विल बी लाइक. सो
Existence of God is based on prior knowledge. That's why inference or anumana. Okay, got the answer? Next question. Read it yourself. Fire is cold because it's a substance like coal. Fire is cold because it is a substance. Tanmay, if you can use chat box because voice is either too low or speak loudly. Remember these fire is cold. देखिए, this is fire is cold. It's because it's a substance. It's an instance of which of the following hetu bhash. So we talked about all these four types of hetu bhash. Mein we have talked Badhita. badhita. Yes, badhita is the correct answer. Why? We will talk on this. So asiddha, that is unproved middle term. So where the middle term is not yet proved. Irregular middle is the case of asiddha. Badhita, non-inferentially contradicted middle term. So under badhita, we have discussed that there is some other pramana which is contradictory the previous pramana. So fire is cold. आग एक ठंडा है because it is a substance, क्योंकि ये substance है. It is like substance. For example, table is a substance, fire is a substance, table is cold, so fire should be cold, but that's not correct. Why? Because from prior knowledge we know that fire is hot. So it is जब कोई और प्रमाण बाध्यता में यही था कि when the conclusion is disapproved by some other pramana, non-inferentially contradicted middle, that is your badhita. Okay, so that's the correct answer. Read out badhita here. Badhita, non-inferentially contradicted middle. So क्या कहता है? When the conclusion about the middle is disapproved by some other pramana, it is badhita. यही वाला एग्जाम्पल भी लिया था. इफ यू लुक एट, लेट मी टेक यू टू द एग्जाम्पल. बाधिता example, just fire is cold because it is a substance like table. Here the coldness of fire is disapproved by the prior knowledge. पूर्व ज्ञान से हम जानते हैं कि फायर की प्रवृत्ति कैसी है. फायर गर्म होता है, ना कि ठंडा होता है. तो भले तो फायर टेबल के जैसा एक सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी फायर जो है वो कैसा है? हॉट है, बिकॉज ऑफ प्रायर नॉलेज. ओके, so far so good. Are you guys able to recollect these things which we have discussed so far? Okay, so which of the following is signified by udharan of anuman inference in Indian logic? Now, to discuss this, you have to understand udharan from the 5-member syllogism sentence we talked about. Remember, from specific we moved to general, from general back to specific. There was a word udharan, universal proposition along with a stance. D कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं. Okay,
So yes, it is universal proposition along with an instance. Remember that 5-membered syllogism which we have discussed. So in that we started from specific and then we moved on to general. That parartha anumana example, if we talk about parartha anumana example, आप देखोगे वहां पे सबसे पहले क्या था, एक बार ऑर्डर रिवाइज कर लेते हैं. प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा, then was hetu. So first was your statement, then hetu, the reason, then there was udharan or the example, upnay and nigman. This order again we'll be revising it in some other question. Okay, so remember this pararthan from here. When we say udharan, that is the example. So example, how it is emphasized, universal proposition along with the instance. For example, if the statement is, let's say, Bill has fire. Let me just take you to that slide. It will be better. So see here, pratigya statement कहता है mountain has fire, पर्वत पर आग है. That is the statement. Reason जिसको हम देख सकते हैं, because it has smoke, पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है. एग्जाम्पल, उदाहरण, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है. तो चूल्हे में धुएं के साथ आग है, चिमनी में धुएं के साथ आग है. तो इस वजह से जैसे ही पर्वत पर हमने धुआं देखा, हमने ये मान लिया कि पर्वत पर भी आग है. So this उदाहरण is the question talking about. Universal proposition along with this instance, smoke का फायर के साथ यूनिवर्सल रिलेशनशिप है. जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है. That is the उदाहरण we are talking about. Hope this question is clear from where this question is being picked up. Yeah. Next question, paksha. बताएं. Middle term. Paksha is middle term, is it? Let's revise it together. So hetu is the middle term. Hetu is what we can see. That is the middle term. Paksha is the minor term on which major term rests. So minor term paksha, मेजर टर्म साध्य. आप जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इस स्लाइड का रख ले. वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. डायरेक्ट क्वेश्चन. सी, मिडिल टर्म इज हेतु. हेतु इज व्हाट वी कैन सी इन आवर एग्जांपल. इफ वी सी स्मोक इन अ हिल, वी कंक्लूड देयर मस्ट बी फायर. सो व्हाटएवर कैन बी सीन, जिस चीज को हम देख सकते हैं वो क्या है, मिडिल टर्म है. हेतु, कारण, रीजन क्या है, मिडिल टर्म है. ठीक है. माइनर टर्म पक्ष, माइनर टर्म ऑन विच मेजर टर्म रेस्ट. सो आग कहाँ पर लाई करता है, आग जो है, साध्य जो है, मेजर टर्म जो है, दैट लाइज ऑन द माइनर टर्म. या द माइनर टर्म इज पक्ष. द क्वेश्चन इज द टर्म पक्ष. पक्ष इज योर
माइनर टर्म, याद रखेगा ना? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a necessary, not पूछा है, not a necessary step when you present argument based on inference before others according to Indian school of logic. So again that paksha dharmata wala sentence, 5-member syllogism, same example you have to recollect. A, निगमन. पक्ष धर्मता वाला जो 5-member syllogism का जो हमने एग्जाम्पल देखा था, recall that 5-member syllogism example. This example I am talking about. Sorry, परार्थानुमान का ये एग्जाम्पल है. So you have प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन. तो क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन सा नहीं है? उपमान नहीं था ना, है ना? उपमान नहीं है. प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू अनुपलब्धि. अनुपलब्धि क्या था? किसी चीज के न होने से पाया जाने वाला ज्ञान. क्लास में टीचर नहीं, ये वाला एग्जाम्पल है. यस यस यस, यू रिकॉल इट. सो बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, इससे ये ज्ञान पाना कि टीचर क्लास में एब्सेंट है. तो which of the following is true? Try if you can relate to any out of these. अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन, निगेटिव, प्रूफ. थ्री. See, we do not infer here. It is 3. In third one it is talking about I infer. So based on some kind of prior knowledge you do inference, yeah. But if you look at the first one, I do not cognize pot on table. मैं देखती हूँ कि टेबल पॉट पे है ही नहीं, therefore pot is absent there. Okay, so it is the first one and not the third one. Fine. Yes. Next question, this we have talked in class also. Which one is not correct? Hetu is a minor term. Hetu is a minor term. Yeah, but why? Because hetu was not the minor term but the middle term, है ना? So that is incorrect. Next question. Devdutt is fat. He does not eat during the day. तो ये वही एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं जो हमने डिस्कस किए हुए. Devdutt is fat, does not eat during day, therefore Devdutt is eating during night.
कंपैरिजन, implication, Implication. perception and verbal testimony. So yeah, different Implication. names you have to remember. Implication का meaning क्या था? Comparison is your उपमाना, implication your अर्थपति. So like that you have to remember these Hindi name as well as English name. So अगर implication कहें, अर्थपति कहें, circumstantial knowledge कहें, knowledge postulation derived from circumstances कहें, कोई भी टर्म यूज किया गया हो, आंसर विल बी implication. फाइन. सो assumption बेस्ड नॉलेज होता है आपका implication. बच्चे के मोटे से शरीर को देखकर हम अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा दिन में नहीं खाता है तो जरूर रात में खाता होगा. ठीक. So that is what we have discussed. Also recall that boat वाला example. बोट अपने निर्धारित समय से 1 घंटे में अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाती है. टाइम इज पास्ट 1 hour. सो वी अज्यूम अनुमाना. सॉरी, अनुमान क्या? अनुमान. व्हाट आर यू सेइंग? अनुमान. नो, आई थिंक जंबल अप हो रहा है आपका. अर्थपति एक बार रिवाइज करते हैं. अर्थपति हमने क्या कहा? अर्थपति, इम्प्लीकेशन, सर्कमस्टांशियल नॉलेज है, मतलब सर्कमस्टांसेस को देख के. ठीक है. तो एक तो हमारा देवदत्त वाला एग्जाम्पल वी डिस्कस. देवदत्त इज फैट. देवदत्त कहता है देवदत्त मोटा है. देवदत्त कहता है वो दिन में नहीं खाता है. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है तो जरूर वो रात को खाता होगा. उसके मोटे शरीर को देख करके जो है हम अज्यूम कर ले रहे हैं. सो दिस इज बेस्ड ऑन circumstances, not on prior knowledge. Understand, whenever there will be anumana, that will be based on some prior knowledge. If you bifurcate it, इसको तोड़ के हम समझे. अर्थ, अर्थ मतलब धन या फिर आपत, या अर्थ मतलब सिग्निफिकेंस, यानी कोई महत्व की चीजें जिसके हमारे लिए इंपॉर्टेंस है. आपत्ति इज अ काइंड ऑफ सपोजिशन और कल्पना, काल्पनिक ज्ञान. दिन में नहीं खाता है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो रात को खाता होगा. सो हियर कॉज इज अज्यूम्ड. अगेन रिवाइजिंग दिस एग्जाम्पल. एक बोट है, नॉर्मली उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने को 1 घंटे लगते हैं. अब ये बोट मान लीजिए 10 बजे चलती है तो टाइम हो रहा है रात के 12 बजे. तो हमने अज्यूम कर लिया कि 10 बजे बोट अपने स्थान से चली है, 12 बज गए हैं, नॉर्मली 1 घंटे में पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन पर. तो हमने अज्यूम कर लिया कि बोट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है. ठीक है. सो दिस इज अज्यूम. अब व्हाई इट इज वन ऑफ द वीक प्रमाणास. ये एक वीक प्रमाणा माना जाता है. अर्थपति implication is weak pramana. Why? Because there can be different circumstances. There might be that boat took a longer route and it took more hours to reach, yeah, or that boat might have broken in between the water. So circumstances near knowledge need not be accurate all the time. काल्पनिक assumption हमारे दिमाग में है. Fine. तो याद रहेगा हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अनुमाना. अनुमाना इज ऑलवेज पश्चात ज्ञान, किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर पाया जाने वाला ज्ञान. दिस इज नॉट बेस्ड ऑन सम प्रायर नॉलेज, प्योरली अजम्पशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस नीड्स लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ व्याप्ति. व्याप्ति से ये क्वेश्चन बना था. Consider the following example of Anumana. Mountain is fiery. पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है और जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है. So
this is talking about some kind of relationship, and we discussed this special relationship in terms of व्याप्ति. व्याप्ति के टर्म्स में हमने इस रिलेशनशिप को समझा था, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट couple of typical words to understand this relationship. See, let's revise व्याप्ति and then we'll come to question again. व्याप्ति को हम नर्व ऑफ इन्फरेंस कहते हैं, या फिर व्याप्ति को हम अनुमान का प्राण कहते हैं. क्यों? क्योंकि यह एक विशेष संबंध है. किसके किसके बीच में? दैट वी विल अंडरस्टैंड. हेतु एंड साध्य के बीच में. सी द सेम एग्जांपल वी कंटिन्यू. हिल हैज फायर. पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है. सो ये टर्म्स हमें अब अज्यूमिंग कि आपको याद होंगे. हेतु यानी कि कारण जिसको हम देख सकते हैं, इसको हम मिडिल टर्म कहते हैं. माइनर टर्म पक्ष एंड मेजर टर्म साध्य. फायर इन द एग्जाम्पल विच वी बीन टॉकिंग. सो जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज हेतु और रीजन, कारण. द आइडिया दैट नीड्स टू बी प्रूवन और डिसअप्रूवन, मेजर टर्म और साध्य. एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच साध्य इज प्रिडिक्टेड. सो साध्य लाइज ऑन पक्ष. हिल हैज फायर, दैट इज व्हाट वी आर इन्फरिंग. यह हम अनुमान लगा रहे हैं कि पर्वत पर आग है. ठीक है. Now we are going to talk about this relationship between smoke and fire. Recall, smoke was what in from the example. Smoke क्या था? कारण था. कारण को क्या कहते हैं? हेतु, है ना. So हेतु and साध्य, fire was the major term और साध्य. So this relationship between हेतु और साध्य, this is called as व्याप्ति. हेतु और साध्य के बीच का विशेष संबंध. So let's talk more on व्याप्ति. Relationship between हेतु and साध्य, middle term and major term. मिडिल टर्म मेजर टर्म के बीच का रिलेशनशिप, हेतु साध्य के बीच का रिलेशनशिप. कैसा रिलेशनशिप? विशेष संबंध, स्पेशल रिलेशनशिप. व्हाई इज दिस सो स्पेशल? सी, वी मीन्स विशेष, स्पेशल, आपती इज द रिलेशनशिप, संबंध. सो what is this kind of relationship? The kind of relationship between hetu and sadhya is, if we say this relationship is unconditional, मतलब अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तो ये अनकंडीशनल होना चाहिए. अनकंडीशनल यानी कि बिना किसी शर्त के. बिना किसी शर्त के कौन सा रिलेशनशिप होता है? देखिए, अगर स्मोक के बाद फायर होगा ही, ठीक है, स्मोक इज फॉलोड बाय फायर. सो विदाउट एनी कंडीशन. ऐसा नहीं कि स्मोक बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, बहुत डेंस स्मोक होगा तभी फायर है. अगर स्मोक है तो फायर होगा, और बिना किसी कंडीशन के स्मोक इज फॉलोड बाय फायर, देयर इज नो कंडीशन अटैच्ड. So, if such kind of relationship exists, then there is व्याप्ति. Number one point. यानी कि फिर से रिपीट कर रही हूँ, हेतु और साध्य के बीच का रिलेशनशिप कैसा है? अनकंडीशनल है. दूसरा एक तो वर्ड हम देखेंगे, कांस्टेंट कॉन्कॉमिटेंस का रिलेशनशिप है. कांस्टेंट कॉन्कॉमिटेंस, ये सारे वर्ड्स आप क्वेश्चन में पूछे गए हैं, सो मीनिंग समझ के लीजिए. कांस्टेंट कॉन्कॉमिटेंस का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट कॉन्कॉमिटेंस का रिलेशनशिप किसके किसके बीच में?
हेतु और साध्य के बीच का। देखिए, जब हम कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या? नियत, नियत यानी कि हमेशा साथ रहने वाला। कॉन्कॉमिटेंस इज सहचर्य, सहचर्य को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं सहचर्य या फिर कोएग्जिस्टेंस। तो जब हम कहते हैं कि धुआं और आग के बीच का जो रिलेशन है यह नियत सहचर्य का है, कांस्टेंट कॉन्कॉमिटेंस का है, मतलब क्या? ये रिलेशनशिप हमेशा ही साथ साथ चलते हैं, नियत सहचर्य साथ साथ चलते हैं। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल यानी कि अनुपौधिक। ये रिलेशनशिप जो है अनकंडीशनल है, कोई भी कंडीशन के बिना, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। और तीसरी बात, ये रिलेशनशिप यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक है यानी कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अगर दिल्ली में धुएं के साथ आग है तो मुंबई में भी धुएं के साथ आग होगी। हर एक जगह यूनिवर्सल आपको सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे, स्मोक फॉलोड बाय फायर। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हेतु एंड साध्य or your middle term and major term. So that is what, how we define vyapti. Vyapti is unconditional constant concomitant relationship between vyapta and vyapaka. So व्याप्ति का मीनिंग क्लियर हुआ? व्याप्ति इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस नियत सहचर्य, दैट इज रिलेशन ऑफ कांस्टेंट कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन हेतु और साध्य, दैट इज मिडिल टर्म और मेजर टर्म। सो फार सो गुड। बताएं, व्याप्ति का मीनिंग क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Now let's come back to questions. So, okay, before coming back to questions, let's see, we have listed it out here. Major terms. Niyat was constant. Constant concomitance. Concomitance यानी कि हमेशा साथ रहने वाले। अनुपौधिक। व्याप्ति का रिलेशनशिप कैसा है? अनकंडीशनल है, मतलब हेतु और साध्य के बीच के जिस रिलेशनशिप की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं वो अनकंडीशनल रिलेशनशिप है। सार्वभौमिक है यानी कि यूनिवर्सल रिलेशनशिप है। स्मोक फॉलोड बाय फायर एवरीवेयर विदाउट एनी कंडीशन, कॉन्स्टेंटली कोएग्जिस्टिंग, कॉन्स्टेंट कॉन्कॉमिटेंस का रिलेशनशिप है बिटवीन हेतु एंड साध्य। सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वाज। क्वेश्चन वाज the relationship. Here it says the relation of invariable concomitance between fire and smoke. See, वैसे अगर आप इसको, अगर आप रिकॉल नहीं भी कर पाए तो आप एग्जाम्पल से जो है रिलेट कर सकते हैं। जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल हम देखें, देखिए रिलेशनशिप माउंटेन और फायर का तो डिस्कस हो ही नहीं रहा था। वी वर टॉकिंग अबाउट हेतु और साध्य। माउंटेन वाज व्हाट? योर पक्ष, तो यू कैन रूल आउट, एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं। माउंटेन अगेन यू कैन रूल आउट। नाउ रिलेशनशिप ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन परसीवर एंड स्मोक। सो अगर आप तो व्याप्ति का कॉन्सेप्ट बहुत डीप में समझ में ना भी आया, कहने का मतलब, देन ऑल्सो यू वुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन इफ यू नो what relationship we are talking about. We are talking about relationship between हेतु and साध्य। हेतु और साध्य के बीच का विशेष संबंध व्याप्ति कहलाता है। कम से कम, अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं लग रही है, तो एटलीस्ट रिमेंबर द मीनिंग बिट ऑफ इट। नेट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो कॉन्सेप्ट समझ के लीजिए। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन योर middle term and your major term. Fine. So far so good. Same question again came in June 2019. So again invariable concomitance between middle term and major term. यहाँ पे जो terms use हुआ है middle term and major term use हुआ है. Fine. अब देखिए इस यहाँ पर
फायर एंड स्मोक, क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेगा। लिंक लग रहा है आपको, समझ पा रहे हैं दोनों क्वेश्चन सेम ही है। जस्ट हियर विद स्टेटमेंट इज गिवन, यहाँ पे बिना स्टेटमेंट के आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। So, from here on, whatever questions we are going to discuss, this is your June 2020 questions. June 2020 starting first question है ये। डी कह रहे हैं असिद्ध। Others also answer fallacy, हेतुभाष produced in the conclusion due to repudiation. Repudiation is cancellation, भंग करना। ठीक है। देखिए विरुद्ध को समझ के लीजिए। यहाँ पे विरुद्ध क्या था, टाइप्स ऑफ हेतुभाष से ये क्वेश्चन है। विरुद्ध, when the middle term is not related to the major term but to its contradictory, then this fallacy arises. विरुद्ध का empty, empty जो है यह डिसअप्रूव कर रहा है कि हवा हल्की भी है। अब देखिए जो चीज हल्की हो सकती है वह भारी कैसे हो सकती है भला। तो यहाँ पर आपका मिडिल टर्म जो है यह डिसअप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है दैट इज व्हाट, एक सेकेंड दीजिएगा। सो ये जो रिलेशनशिप है विरुद्ध का रिलेशनशिप है। विरुद्ध कहता है मिडिल टर्म इज नॉट रिलेटेड टू मेजर टर्म बट टू इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी। मिडिल टर्म एक तरीके से कह रहे हैं हम डिसअप्रूविंग है। एम्प्टीनेस ऑफ एयर एंड एयर इज हेवी। सो विरुद्ध का रिलेशनशिप है। यहाँ पर एक बार क्विकली आप ये चार्ट का एक नजर देख लीजिए, बाकी टर्म्स रिवाइज कर लीजिए, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे। सो जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। चले आगे। सो आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए, टू इन्फर रेन इन पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड। तो आगे हम क्या देख रहे हैं, हम इफेक्ट देख रहे हैं। पॉन्ड में मडी वाटर है, कीचड़ भरा पानी पॉन्ड में मौजूद है। ठीक है, तो
हम क्या देख रहे हैं, हम इफेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं, इससे हम कॉज का अनुमान लगा रहे हैं। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है यहाँ पर मडी वाटर इन द पॉन्ड। सो हम असर पहले देख रहे हैं और उसके बेसिस पर हम कॉज का अनुमान लगा रहे हैं कि पास्ट में रेन हुआ होगा, बारिश हुआ होगा। तो ये बचा हुआ क्या दिख क्या रहा है हमें, मडी वाटर इन द पॉन्ड। तो जब हम बचा खुचा हुआ देखते हैं दैट इज शेषवत। ठीक है, इसी का उल्टा अगर होता पूर्ववत तो उसका भी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब अगर आप आकाश में मान लीजिए गहरे रंग के बादल पहले देखते, ठीक है, आकाश में गहरे रंग के बादल है और हम फिर इन्फर करते कि रेन्स माइट कम, गहरे रंग के बादल है तो बारिश होगी। तो ये क्या था, पहले हम क्लाउड्स देखते पूर्ववत, पहले हम यहाँ पर क्या देखते, कॉज देखते, कॉज वुड हैव बीन योर क्लाउड, डार्क क्लाउड्स। ठीक है, सो पूर्ववत वाज व्हेन द इफेक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कॉज, या रेन इज इन्फर्ड फ्रॉम क्लाउड्स। शेषवत इसका उल्टा, व्हेन द कॉज इज इन्फर्ड फ्रॉम इफेक्ट। सो इफेक्ट हम पहले देख रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं कि कोई वाटर बॉडी है जहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस पानी है, सड़क गीली है, तो हम पीछे जा करके देखते हैं कि बारिश हुई होगी इसलिए सड़क गीली है। ठीक है, तो पूर्ववत शेषवत अनुमान से क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है दोनों टर्म्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस। तो शब्द प्रमाण न्याय फिलॉसफी में पूछा है कि इसका क्रम क्या होना चाहिए। तो ये क्रम हमने डिस्कस किया था क्लास में जब हम इसको डिटेल में पढ़े थे तभी। 4 कह रहे हैं, याद है क्रम भूल गए, चलिए क्रम रिवाइज करते एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए शब्द में सबसे पहले आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी और तात्पर्य होना चाहिए, उसका कहने का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्कशन ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। आकांक्षा होनी चाहिए ताकि वो शब्द कुछ उसका अर्थ बन सके। ठीक है, कुछ अर्थ बन सके। अगर आप किसी से मान लीजिए समय पूछ रहे हैं, तो आप किसी से पूछ रहे हैं कितना टाइम हो रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पर आकांक्षा है ताकि कुछ ज्ञान पाया जा सके। शब्दों में योग्यता होनी चाहिए, यानी कि वो आपस में विरोधाभास शब्द नहीं होने चाहिए, है ना। ओके फाइन, नो वरीज। सो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं करने होने चाहिए। हम एक तरफ कह रहे हैं हवा हल्की है, हवा भारी है, तो इस तरीके का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ वर्ड्स टू अनदर, सन्निधि होनी चाहिए। प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं हम, अभी कह रहे हैं अभी, फिर 1 घंटे के बाद कह रहे हैं 5, फिर 1 घंटे के बाद कह रहे हैं बज रहे हैं, तो फिर इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तात्पर्य यानी कि सेंटेंस में इंटेंशन ऑफ स्पीकर क्या है, इस ऑर्डर को आपको ऐसे ही याद रखना है। देखिए क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं 2020 में कि क्या ऑर्डर होना चाहिए सेंटेंस में, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये जो पक्ष धर्मता का हमने एग्जांपल लिया था वहां से ये क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म वी डिस्कस ना, इंडक्टिव, डिडक्टिव, बोथ इन द पक्ष धर्मता वाला एग्जांपल। होप यू रिमेंबर दैट 5 member syllogism example which we are talking about। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ऑर्डर में लगाना है, बताएं।
एग्जाम्पल को एज इट इज याद रखिए, एक बार वापस ऑर्डर देखिए। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय दैट इज रीअफर्मेशन, एंड देन कंक्लूजन और निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। फाइन, चलिए ऑर्डर में लगा लीजिएगा आप। अगेन देखिए, सेम ही क्वेश्चन अलग अलग नाम से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन हमने 2019 में भी देखा था। अभी देखिए, what is making it easy now is both the names are given. हिंदी नेम, इंग्लिश नेम, दोनों भी यहाँ पे आपको दिखता है। ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्लियर है ना ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. यस तन्मय, क्लियर है ना? चलिए, क्वेश्चंस में देखिए आपको रेपिटेशंस भी देखने को मिलता है, तो एक आध क्वेश्चन में यहाँ पे रेपिटेशंस भी है। देखिए, अलाइव देवदत्त इज ईदर इन द हाउस और एल्सवेयर। अलाइव देवदत्त इज नॉट इन द हाउस, या तो घर में है या तो घर के बाहर है। देयरफॉर अलाइव देवदत्त अगर घर में नहीं है तो घर से बाहर है। ठीक है, तो सर्टेनिटी हम यहाँ पर अज्यूम कर ले रहे हैं। देवदत्त या तो घर में है या तो घर से बाहर है। अगर वह घर में नहीं है तो घर से बाहर एवरीवेयर है। फाइन, इम्प्लीकेशन अर्थपति इसका भी आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पूछता है ये क्वेश्चन में कि कौन से इंडियन फिलॉसफी एंटी एथिकल टू वेदास है, यानी वेदों की प्रामाणिकता को जो नहीं मानते हैं। रिमेंबर ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट। Buddhism, Jainism. बुद्धिज्म, जैनिज्म, यस, व्हाट एल्स? चरवाक को भूल गए? उत्तर, हाँ 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 हाँ, मीमांसा तो उत्तर मीमांसा, मानता भट्ट है मानता है मीमांसा, मानते ये हैं, तो वेदास ही था। हाँ, करेक्ट। चरवाक जो एक ही प्रमाण को मानता था, कौन सा था वो? परसेप्शन फर्स्ट, परसेप्शन, नहीं नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण, यस करेक्ट। सो सी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाक, इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट, in Indian logic, the presence of middle term in the minor term. मिडिल टर्म क्या था आपका? हेतु। माइनर टर्म क्या था? पक्ष। एग्जाम्पल अगर हम ले, इफ वी सी स्मोक इन अ हिल वी कंक्लूड देयर मस्ट बी फायर, ये वाला एग्जाम्पल ले तो हेतु क्या था यहाँ पर? स्मोक था। सो पक्ष क्या था? हिल था, है ना? सो क्वेश्चन कहता है द प्रेजेंस ऑफ मिडिल टर्म, धुआं का, इन द माइनर व्याप्ति, टर्म, पर्वत के ऊपर प्रेजेंट होना। धुआं का पर्वत के ऊपर प्रेजेंट होना, इसको हमने एक टिपिकल टर्म पढ़ा था। ए कह रहे हैं ओके, अदर्स प्लीज आंसर। देखिए, पक्ष धर्मता का मीनिंग समझ के लीजिएगा। पक्ष धर्मता में हमने क्या देखा था? पक्ष धर्मता परार्थ अनुमान का यहाँ पे मीनिंग आ गया है, लेकिन पक्ष धर्मता का मीनिंग ही यही है, मिडिल टर्म का, हेतु का पक्ष में प्रेजेंट होना पक्ष धर्मता कहलाता है। आई रिपीट, हेतु का
पक्ष में प्रेजेंट होना, हेतु का, धुएं का, पर्वत, पक्ष में प्रेजेंट होना ही पक्षधर्मता कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, उपनय, उपनय पूछा है इसमें। Hill has fire because it has smoke, and whatever has smoke is fiery. क्वेश्चन कहाँ से बना है ये? 5 मेंबर्स सिलोजिज्म जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, सो यहाँ पे उपनय का मीनिंग समझ के लीजिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इस 5 मेंबर सिलोजिज्म से। यहाँ पर देखिए, उपनय क्या था? रीअफर्मेशन। रीअफर्मेशन किसकी बात करता है? Mountain has smoke which is invariably associated with fire. So हम एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं इस चीज को। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या था? प्रतिज्ञा कहती है पर्वत पर आग है। कारण कहता है क्योंकि वहां धुआं है। उदाहरण हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। क्यों? पूर्व ज्ञान के आधार पे हमने चूल्हे में देख रखा है, चूल्हे में धुएं के बाद आग है, इसीलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अब हम इसको रीअफर्म कर रहे हैं, वापस से कह रहे हैं द माउंटेन हैज स्मोक। तो पर्वत पर धुआं है, और धुआं जो है यह इनवेरेबली आग के साथ इसका संबंध है। ठीक है, धुआं का आग के साथ एक विशेष संबंध है। रीअफर्म कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं वापस से। तो दैट इज उपनय। फाइन, रीअफर्मेशन वर्ड्स याद रखें, वही से क्वेश्चन बना है। पूछ रहा है इसमें उपनय कौन सा है? तो देखिए, उपनय जो है इसका आंसर बन जाता है डी, बिकॉज यहाँ पर देखिए हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरेबली एसोसिएटेड विद फायर। अब देखिए, आपको यहाँ से एक चीज भी समझ लग रहा हूँ कि इफ अगर आपको ये वाला 5 मेंबर सिलोजिज्म वाला जो एग्जाम्पल था, अगर वो भी आपने अच्छे से कर लिया तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप आराम से आंसर कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल में वर्ड्स भी चेंज नहीं किए गए, इनफैक्ट सेम ही तो वर्ड्स यहाँ पर पूछे गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एरिस्टोटल फिलोसफी से भी व्हेन आई वाज डूइंग एनालिसिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम, सो इस पर जो है हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बट नॉट इन टुडेज क्लास। यहाँ पर मैंने बस मेंशन कर दिया है क्वेश्चन आपको। इनहेरेंट कॉज ऑफ समवय ऑफ इंडियन philosophy corresponds to which of the causes given by Aristotle? Aristotle के 4 causes हैं। मटीरियल कॉज कहता है that out of which it is made. So answer here is material cause. बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रही उस क्वेश्चन के, so we need more explanation to it. We will cover Aristotle's because lot of questions have come. Fine, तो मैं इसको आपके साथ सेपरेट डिस्कशन कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? Fire is not warm because it is produced such as water. ठीक है, फायर की कंपैरिजन वाटर से की जा रही है। अगेन बाधित वाला सेम ही एग्जांपल। सो कौन सा एग्जांपल है ये? बाधित विषय। अब यहाँ से हमें ऑलरेडी क्लियर हो जाता है ये बाधित का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बाधित में हमने क्या देखा था? coldness of fire disapproved by some other pramana, that was बाधित। ठीक है, समझ लग रहा है क्वेश्चन?
बाधित इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, जिसका नेम है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन नेम एंड ऑब्जेक्ट, whatever is nameable is knowable and whatever is knowable is nameable, that is the example we have talked. So जो जिसका नाम है, मान लीजिए टेबल को हम टेबल कह रहे हैं, तो टेबल का नाम है, इसलिए टेबल जो है, टेबल का हम नॉलेज भी पा रहे हैं, इसका नाम है, इसलिए इसके बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। whatever is nameable is knowable। तो ये किस तरीके से की रिलेशनशिप की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट अ कंपैरिजन, जिसका भी नाम है वो एक ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका तो नाम है, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, कंपैरिजन जो है इसका आंसर बन जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास इज एक्सेप्टेड इन वैशेषिक फिलोसफी। तो इसके लिए आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। वैशेषिक फिलोसफी जो है कौन कौन से प्रमाण को मानता है, मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर की है, कौन सा स्कूल कौन से प्रमाण को मानता है वो Yes, आपको ma'am. रखना ही पड़ेगा। उससे क्वेश्चंस बन रहे, देखिए एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस। सो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, ठीक है। अर्थपति वैसे भी वीक प्रमाण है, तो केवल जो भट्ट मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया, अद्वैत वेदांत हो गया, वही इन सारी फिलोसफीज को मानता है, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस है, बट इट इज लिटिल हेवी टू डू इट ऑल एट वंस, फाइन। तो यही तक रखते हैं आज की क्लास, देयर इज लॉट टू बी डन। We'll continue. We'll have one more class on Indian logic, but before that we have another class tomorrow on formal fallacies. Okay? फिर हम इसको बचे हुए जितने क्वेश्चंस हैं एक और दिन दे देंगे। Okay? Thank you, ma'am. Yeah. Thank you.